السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں بول نیوز۔ میں ہوں شمائلہ ارشد۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی۔ سب سے پہلے خبر یہ ہے کہ 4 ورکنگ ڈیز ہوں گے۔ سرکاری اور نجی شعبے میں انتہائی ضروری سروس کے علاوہ 50% اسٹاف گھر سے کام کرے گا۔ سرکاری محکموں کی گاڑیوں کے تیل میں 2 ماہ کے لیے 50% کٹوتی کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا خطاب، کہا وزیر، مشیر، معاونین اگلے 2 ماہ تنخواہ نہیں لیں گے۔ اراکین پارلیمنٹ کی تنخواہوں میں 25% کٹوتی ہوگی۔ 3 لاکھ سے زائد سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 2 دن کی کٹوتی کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ وفاقی وزراء، مشیران کے بیرون ملک دوروں پر پابندی عائد ہوگی۔ وزیر اعظم، گورنر، وزراء اعلیٰ بھی غیر ملکی دورے نہیں کر سکیں گے۔ تمام اسکولوں کی رواں ہفتے آخری 2 ہفتے کی چھٹیاں ہوں گی۔ تمام سرکاری دفاتر کی 60% گاڑیوں کو بند کیا جا رہا ہے۔ وفاق کے اہم فیصلے، 4 ورکنگ ڈیز ہوں گے۔ سرکاری نجی شعبے میں 50% اسٹاف گھر سے کام کرے گا۔ اجلاس منعقد ہوا جس میں وفاقی اور صوبائی حکومتوں کی جانب سے حکومتی معاملات میں سادگی اختیار کرنے کے لیے متفقہ طور پر بہت اہم فیصلے کیے گئے۔ ہفتے میں صرف 4 دن دفاتر کھلیں گے۔ سرکاری اور نجی شعبے میں انتہائی ضروری سروسز کو چھوڑ کر باقی تمام جگہوں پر 50% اسٹاف گھر سے کام کرے گا۔ آئندہ 2 ماہ کے لیے سرکاری محکموں کی گاڑیوں کو ملنے والے تیل میں 50% فی الفور کٹوتی کی جا رہی ہے۔ آئندہ 2 ماہ کے لیے کابینہ کے ارکان، وزراء، مشیران، معاونین خصوصی تنخواہ نہیں لیں گے۔ ارکان پارلیمنٹ کی تنخواہوں میں سے 25% کٹوتی کی جا رہی ہے۔ جن کی تنخواہ 3 لاکھ سے زائد ہے، ان کی 2 دن کی تنخواہ کی کٹوتی کر کے عوامی ریلیف کے لیے، یعنی آپ کی ریلیف کے لیے استعمال کی جائے گی۔ وفاقی و صوبائی وزراء، مشیران اور معاونین خصوصی اور سرکاری افسران کے بیرون ملک دوروں پر بھی مکمل پابندی عائد کر دی گئی ہے، اور یہ پابندی وزیر اعظم، وزراء اعلیٰ، گورنرز پر بھی عائد ہوگی۔ تمام اسکولوں کو رواں ہفتے کے آخر سے 2 ہفتوں کی چھٹیاں دی جا رہی ہیں۔ آئندہ 2 ماہ کے لیے تمام سرکاری محکموں کی 60% گاڑیوں کو بند کیا جا رہا ہے۔ آنے والے دنوں میں تیل کی قیمتیں پھر بڑھیں گی۔ عالمی منڈی میں خام تیل چند روز میں مہنگا ہوا۔ قیمتوں کا تعین پاکستان کے اختیار میں نہیں ہے۔ دل پر پتھر رکھ کر فیصلہ کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں کہ بدقسمتی سے پورا خطہ شدید جنگی صورتحال کی لپیٹ میں ہے۔ دوسری جانب پاکستان کو مغربی سرحد پر دہشت گردی کا سامنا ہے۔ بہادر افواج سپہ سالار کی قیادت میں وطن کی سلامتی کا مقدس فریضہ سر انجام دے رہی ہیں۔ خلیجی ممالک پر حملے قابل مذمت ہیں۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمت $100 سے تجاوز کر گئی ہے۔ عالمی منڈی میں تیل اور گیس کی قیمتوں کا تعین پاکستان کے اختیار میں نہیں ہے۔ تیل کی قیمتوں میں جو اضافہ کرنا پڑا ایک انتہائی مشکل اور دل پر پتھر رکھ کر کیا جانے والا فیصلہ تھا۔ ہماری معیشت، زراعت، صنعتوں، ٹرانسپورٹیشن اور روزمرہ کی زندگی کا زیادہ انحصار خلیج سے آنے والے تیل اور گیس کی فراہمی پر ہے۔ اس شدید مشکل میں سے ہم نے درمیانی راستہ نکالا تاکہ آپ پر بوجھ نہ پڑے۔ پورا خطہ اس وقت شدید جنگی صورتحال کی لپیٹ میں ہے، جس کے اثرات ہم پر بھی مرتب ہو رہے ہیں۔ دوسری جانب ہمیں اپنی مغرب سرحدوں پر بھی دہشت گردی کا سامنا ہے۔ ہماری بہادر افواج، ہمارے پرعزم بہادر سپہ سالار کی لیڈرشپ میں وطن عزیز کی سلامتی اور خود مختاری کے تحفظ یقینی بنانے کا مقدس فریضہ انتہائی جانفشانی کے ساتھ ادا کر رہی ہیں۔ ہم ان حملوں کی 2 ٹوک الفاظ میں بھرپور مذمت کرتے ہیں۔ سید عاصم منیر، میں انہیں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے سلام پیش کرتا ہوں۔
अहम खबर है, ईरान के इजराइल पर जवाबी हमले में इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का भाई हलाक हो गया है। साबिक अमरीकी इंस्पेक्टर स्कॉट रिटर ने दावा किया है कि नेतन्याहू के घर को निशाना बनाया गया है। स्कॉट रिटर के मुताबिक हमले में इजरायली वज़ीर इत्माद बिन गौयर के घर को भी निशाना बनाया गया था, जिसमें वो शदीद ज़ख्मी हुआ। मेज़बान ने कहा कि बीबीसी दावा कर रहा है कि वो कार हादसे में मरा है। स्कॉट रिटर ने तंज़िया कहा कि उसकी गाड़ी घर में पार्क थी। हो सकता है घर में खड़ी गाड़ी हादसे का शिकार हो गई हो, जिसमें वो ज़ख्मी हुआ हो। वज़ीर आज़म के ऐलान करदा किफ़ायतशारी इक़दामात पर फौरी अमल दरामद का आगाज़ हो गया है। काबीना डिवीज़न ने किफ़ायतशारी इक़दामात का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इक़दामात का इत्तलाक़ तमाम वफाकी इदारों, वज़ारतों, खुद मुख्तार इदारों और कॉरपोरेशंस पर होगा। किफ़ायतशारी इक़दामात का इत्तलाक़ अदलिया, मुक़न्नना और दिफ़ाई इदारों पर भी होगा। इसी पर बात करेंगे। नुमाइंदा बोल न्यूज़ फ़हद चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। जी फ़हद। जी देखिए, खित्ते की मौजूदा सूरत हाल और तवानाई खुसूसन पेट्रोलियम मसनूआत के इस्तेमाल के हवाले से किफ़ायत शहरी इक़दामात का आज ऐलान किया गया था वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से, जिन पर फौरी अमल दरामद का आगाज़ कर दिया गया है। काबीना डिवीज़न ने किफ़ायत शहरी इक़दामात का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है और इस नोटिफिकेशन के मुताबिक जो सरकारी गाड़ियों को मिलने वाला तेल है उसमें 2 माह के लिए 50% कटौती कर दी गई है। 2 माह के लिए तमाम महकमों की 60% गाड़ियों को बंद किया गया है और काबीना अरकान 2 माह के लिए तनख्वाह नहीं लेंगे। अरकान पार्लियामेंट की तनख्वाहों में इससे 25% कटौती की जाएगी। इसके अलावा विफाकी और सूबाई काबीना अरकान और अफसरान के बैरून मुल्क दौरों पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी गई है। सरकारी और निजी इदारों में 50% स्टाफ घर से काम करेगा और दफातर जो है वो हफ्ते में 4 दिन खुलेंगे, यानी कि 4 दिन का वर्किंग वीक होगा। सरकारी तालीमी इदारों में आइंदा हफ्ते से 2 हफ्तों की छुट्टियों का भी ऐलान कर दिया गया है और एक दिलचस्प और अवामी नौयत का जो है वो इकदाम उठाया गया है। वफाकी हुकूमत ने मोटरवेज और हाईवेज पर हद रफ्तार भी कम कर दी है। मोटरवेज पर हद रफ्तार 90 से 100 किलोमीटर जबकि हाईवेज पर 80 किलोमीटर फी घंटा होगी और इसका मकसद पेट्रोल की बचत करना है। जी ठीक है फहद, बहुत शुक्रिया आपका। खित्ते में जंग के बायस मुआशी मुश्किलात के पेश नज़र वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने गैर मामूली इक़दामात का ऐलान कर दिया है। पेट्रोलियम बहरान के खात्मे के लिए सूबाई वज़रा के लिए सरकारी ईंधन बंद कर दिया गया है। अफसरान की गाड़ियों के लिए 50% कमी की गई है और सिर्फ एक सिक्योरिटी गाड़ी की इजाज़त दी गई है। सरकारी दफातर में घर से काम की पॉलिसी नाफिज। तालीमी इदारे 10 मार्च से 31 मार्च तक बंद रहेंगे। खित्ते में जंग के बायस से मुआशी मुश्किलात के पेश नज़र वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का गैर मामूली इक़दामात का ऐलान। पेट्रोलियम बहरान के खात्मे तक सूबाई वज़रा के लिए सरकारी ईंधन बंद करने और सरकारी अफसरान की गाड़ियों के लिए पेट्रोल और डीजल अलाउंस में 50% कमी का फैसला। सिर्फ एक सिक्योरिटी गार्ड रखने की इजाज़त होगी। सरकारी दफातर में घर से काम की पॉलिसी नाफिज। सिर्फ ज़रूरी अमला ही दफातर आएगा। तालीमी इदारों के हवाले से भी बड़ा फैसला किया गया है, जिसके तहत पंजाब भर में स्कूल्स, कॉलेजेस और जामियात 10 मार्च से 31 मार्च तक बंद रहेंगी, जबकि इम्तिहानात अपने शेड्यूल के मुताबिक होंगे और तालीमी इदारों को ऑनलाइन क्लासेस की इजाज़त होगी। वज़ीर आला पंजाब ने पेट्रोलियम मसनूआत की निगरानी के लिए हर ज़िले में खुसूसी मॉनिटरिंग कमेटियाँ कायम करने की हिदायत की है। बैरूनी तकरीबात पर भी पाबंदी आयद कर दी गई है और हॉर्स एंड कैटल शो भी मुलतवी कर दिया गया है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने मुश्किल हालात में जुर्रतमंदाना फैसलों पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को खराज तहसीन पेश किया। कहा कि बहादुर कौमें मुश्किल हालात का मुकाबला इत्तेहाद, सब्र और दानिशमंदी से करती हैं। उधर खैबर पख्तूनख्वा में वज़ीर आला सुहेल आफरीदी की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का इजलास हुआ, जिसमें सरकारी दफातर में 50% वर्क फ्राम होम पॉलिसी नाफिज करने, जुम्मे के दिन तालीमी इदारे बंद रखने और वर्चुअल क्लासेस को तरजीह देने के इक़दामात की मंजूरी दी गई। काबीना ने 2 माह के लिए फ्यूल बचत इक़दामात नाफिज करने, सरकारी गाड़ियों के फ्यूल अलाउंस में मजमूई तौर पर 50% कमी करने और मीटिंग्स को मुकम्मल तौर पर ऑनलाइन करने का फैसला किया। पुलिस, रेस्क्यू और कानून नाफिज करने वाले इदारे फ्यूल कटौती से मुस्तस्ना होंगे, जबकि VIP प्रोटोकॉल गाड़ियों और हेलीकॉप्टर के गैर ज़रूरी इस्तेमाल में भी कमी की गई है। इसके अलावा बलूचिस्तान हुकूमत ने भी सूबे भर के तमाम सरकारी और निजी तालीमी इदारे आर्जी तौर पर बंद करने का ऐलान कर दिया है।
नोटिफिकेशन के मुताबिक सूबे के तालीमी इदारे 9 मार्च से 23 मार्च तक बंद रहेंगे। हुक्काम के मुताबिक ये फैसला हालिया इलाकाई सूरत हाल के पेश नज़र किया गया है। हुक्काम का कहना है कि नकलो हरकत और ट्रांसपोर्ट के मसाइल के बायस अवामी सहूलत को मद्देनज़र रखते हुए ये इकदाम उठाया गया है। तालीमी इदारों की बंदिश के बावजूद दाखिला मुहिम, डिजिटल मरदमशुमारी और शेड्यूल इम्तहानात जारी रहेंगे। मुतालिक अफसरान को हिदायत की गई है कि वो तालीमी सरगर्मियों को जारी रखने के लिए जारी करदा हिदायत पर अमल दरामद यकीनी बनाए। और अब खबर यह है कि मुज्तबा खामनाई ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुंतखब हो गए हैं। ईरान के नए रहबर आला के नाम का ऐलान कर दिया गया है। ईरान में सरकारी खबरसाई एजेंसियों ने मुज्तबा खामनाई को इस्लामी जमहूरिया के रहनुमा और अपने वालिद के जानशीन के तौर पर मुंतखब करने का ऐलान किया। मजलिस खुबरगान ने ईरानी अवाम से रहबर आला से वफादारी के अहद की अपील कर दी। पासदारान इनकलाब का नए सुप्रीम लीडर के साथ वफादारी का ऐलान। ये फैसला ईरान की आला तरीन मजहबी और सियासी अथॉरिटी के इंतखाबी अमल के बाद सामने आया है, जो मुल्क की पॉलिसी और आइंदा समत के तयन में मरकजी हैसियत रखता है। मुज्तबा खामनाई मशहद में पैदा हुए और अपने वालिद की तरह एक आलिम हैं। मुज्तबा खामनाई अपने वालिद के क़दामत पसंद हलकों में काफ़ी ताकतवर समझे जाते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।